एंड ऑफ द स्ट्रेंथ, और वो ताकत उस कविता में है, एंड जॉय, और वो आनंद देने वाली बात उस कविता में है, टू बी ड्रॉन फ्रॉम इट, जिसे हम उस कविता में से ले सकते हैं, शुड बी प्रेजेंट इन अवर माइंड्स, वो चीज हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, एंड शुड गवर्न अवर एस्टिमेट ऑफ वॉट वी रेड, और जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हमारे दिलो दिमाग पर हावी होना चाहिए, if it is not imposed on our heart or mind. The next principle Matthew Arnold gave is that the grand style. The grand style, on this point, let me tell you one thing, frankly and categorically, that the grand style is something that is related, or that is Matthew Arnold, I must say that Matthew Arnold was some or the other way, he was also impressed by Longinus and his principles. Longinus propounded one best principle, and the title was that on the sublime, Udattikaran. With the help of that Udattikaran, Udatta Bhav, on the sublime, with that term, Longinus propounded certain principles, certain theories, with the help of which we can understand a particular work of art. With the help of that principle, we can understand, we can take delight, we can be joyful after reading, after perusing certain work of art, certain poems of certain poets. So here also, about the grand style, Matthew Arnold is of the opinion that on translating Homer, while he was translating Homer, that Arnold expresses his views on the subject more elaborately, अपने विषय को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से और विस्तृत ढंग से वो अपने विचार को यहाँ व्यक्त करता है, क्लियरली एंड इन डेफिनेट वर्ड्स, निश्चित शब्दों में और बड़े ही स्पष्ट रूप से. ही puts his views explicitly before the readers like us. Arnold says that Homer was the grand master of the grand style. महान स्टाइल का, महान विन्यास का, महान शैली का वो एक ग्रैंड मास्टर है, वो मालिक है. हाँ, उसमें वो हथौटी है. हाँ, वो he is expert of that grand style. And with the help of that grand style, what he says is the grand style ennobles poetry as it ennobles life. कितना बढ़िया वाक्य है मित्रों, कि द ग्रांड स्टाइल ennobles poetry. ये महान विन्यास, ये ग्रांड स्टाइल पोइट्री को जिस प्रकार से इनोबल करती है, उदात्त बनाती है, महान बनाती है, जिस प्रकार से वो लाइफ को बनाती है. एक्चुअली दरअसल इट अराइजेज इन पोइट्री व्हेन अ नोबल नेचर पोइटिकली गिफ्टेड, और वही चीज इट अराइजेज इन पोएट्री, वो कविता में हमें वो उदात्तता दिखाई देती है. व्हेन अ नोबल नेचर, जिस प्रकार से एक महान स्वभाव वाला कवि पोएटिकली गिफ्टेड, कवित्व से जिसे उपहार मिला है, भगवान की ओर से कविता का जिसे उपहार मिला है, ट्रीट्स विथ सिंप्लिसिटी और सिवियरिटी अ सीरियस सब्जेक्ट. एक गंभीर विषय का भी वो डिस्कशन इतनी सादगी के साथ वो करता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि उस कविता में किस प्रकार से एक उदात्त स्वभाव व्यक्त हो जाता है. सो फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रांड स्टाइल, व्हाट ही सेज इज दैट द पोएट शुड नो हाउ टू यूज द ग्रांड स्टाइल, एंड दिस principle of grand style is indeed
one of the best principles given by Matthew Arnold to criticism. Next slide says, from the last slide, it is now clear, with the help of that last slide, the grand style, it is now clear that for the grand style, it is necessary, ये ज़रूरी है, for the grand style, it is necessary, my dear friends, mind well, for this grand style, it is necessary, ये आवश्यक है कि, first thing, the poet should be a man of noble nature for great minds. महान मस्तिष्क वालों के लिए, for the poet should be a man of noble nature. कवि के लिए क्या होना जरूरी है? एक वो ऐसा व्यक्ति हो कि जिसमें महान स्वभाव निहित हो, उदात्त स्वभाव निहित हो. बिना उदात्त स्वभाव के, बिना महान स्वभाव के एक कवि कवि नहीं हो सकता. और न ही कैन पेन better poems which can appeal to the mass. At one place, Matthew Arnold said, friends, let me share this good quotation. I quote Matthew Arnold from his criticism. What he says is really marvelous. That is really touching. What he says in this quotation is, science is a matter of intellect. Mind well, dear friends, listen to this quotation very carefully. I quote, science is a matter of intellect. Therefore, it appeals a limited number of people. I again repeat, I quote, science is a matter of intellect, so it appeals to a limited mass of people, limited number of people. But on the other side, poetry is a matter of emotion and feeling. Therefore, it appeals to each and every one of us. विज्ञान एक ऐसी चीज है जो बुद्धि से ताल्लुक रखती है, इसीलिए वो कुछ एक लोगों को अपील करती है. विज्ञान मित्रों, और हम जानते हैं कि विज्ञान एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, इसलिए वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अपील करती है. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कविता है मित्रों, वो कविता हमारे इमोशन से, हमारी संवेदनाओं से, हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई है. इसीलिए, और मैं मानता हूं कि हमारी ये संवेदनाएं हर एक मनुष्य में है, हर एक प्राणी में है. ये संवेदनाएं, ये फीलिंग, ये इमोशन, और ये फीलिंग, ये इमोशन, ये संवेदनाओं से ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और ये इमोशन को कविता बहुत इजीली अपील करती है. और चूंकि ये संवेदनाएं और ये फीलिंग हर एक मनुष्य में है, इसलिए कविता, पोएट्री, पोएम अपील्स टू ईच एंड एवरी वन. डियर फ्रेंड्स, let us come to the point again with the same slide where we were. First thing, the poet should be a man of noble nature for great minds. Second thing, the subject or action must be serious. उस कविता का जो विषय या कार्य होना चाहिए वो बहुत ही गंभीर होना चाहिए. इट मस्ट हैव ट्रुथ ऑफ सब्सटेंस एंड हाई सीरियसनेस. उस कविता में गंभीरता, उच्च गंभीरता और सब्सटेंस, कोई सार का सत्य उसमें निहित होना चाहिए, उसमें विराजमान होना चाहिए. थर्ड थिंग, द ट्रीटमेंट शुड बी सिंपल और सीवियर. और जो ट्रीटमेंट है उसकी वो बहुत ही सहज, सरल होनी चाहिए. फोर्थ थिंग, फोर्थ एलिमेंट, द स्टाइलिस्ट मस्ट बी पोएटिकली गिफ्टेड. स्टाइलिस्ट मीन्स अ पोएट मस्ट बी पोएटिकली गिफ्टेड. उसे कवित्व के रूप में कविता का, उस पर भगवान का दिया हुआ वरदान उसे प्राप्त हुआ होना चाहिए. आर्नल्ड सेज दैट 3 पोएट्स, आर्नल्ड कहते हैं कि 3 कवि, होमर, डांटे एंड मिल्टन, आर द मास्टर्स ऑफ द ग्रैंड स्टाइल. ये तीनों महान विन्यास के बहुत बड़े कलाकार हैं. होमर, डांटे और मिल्टन, ये तीनों
अपने समय के बहुत बड़े कवि थे. द बेस्ट मॉडल ऑफ द ग्रांड स्टाइल सिंपल इज होमर. मित्रों देखिएगा कि किस प्रकार से आर्नल्ड इवैल्यूएट्स दीज थ्री पोएट्स इन अ डिफरेंट वे, and how he is evaluating it is marvelous. It is worth listening, it is worth watching. Let us see Homer, Dante and Milton, how they are the masters of grand style. Let us see. The best model of the grand style simple is Homer. Homer अपने महान स्टाइल के लिए सिंपल के रूप में, सिंप्लिसिटी जिसमें भरी हुई है, उसके बेस्ट मॉडल हैं, सर्वोत्कृष्ट कवि हैं. द बेस्ट मॉडल ऑफ द ग्रांड स्टाइल सीवियर इज मिल्टन. जिस कवि में ग्रांड स्टाइल काफी सहज ढंग से प्राप्त है, उसके सर्वोत्कृष्ट कवि हैं मिल्टन. बट डांटे इज रिमार्केबल, लेकिन डांटे विशेष उल्लेखनीय है फॉर अफोर्डिंग एडमिरेबल एग्जाम्पल ऑफ बोथ स्टाइल्स. और डांटे ही एकमात्र ऐसे कवि हैं. डांटे इज ओनली अ पोएट इन विच दीज टू थिंग्स आर साइमल्टेनियसली lie in him, because Dante is the best model of simple and Dante is the best model of severe grand style. Dear friends, Matthew Arnold is not only known for his three estimates and the grand style, but he is also known for his another principle which is immortal in the history of English criticism, and that is the touchstone method. The touchstone method is really to be known for its newness, and that is in order to judge a work of art and find out the presence of the qualities of great poetry in it. In which context Matthew Arnold gave this touchstone method principle. Let us see. Matthew Arnold कहते हैं कि किसी भी कार्य पर कोई जजमेंट लेना है, कोई निर्णय लेना है, उसके बारे में आलोचना करनी है, उसके बारे में विवेचना करनी है, अगर उस उद्देश्य को हम दिमाग में रख करके चलते हैं और उसमें यह जानना है कि महान कविता के गुण उसमें विद्यमान हैं या नहीं, तो फिर आर्नोल्ड ऐसे मकाम पर हमें उसकी बहुत ही वेल नोन, बहुत ही चिरपरिचित मेथड हमारे सामने रखता है. दैट इज टचस्टोन मेथड. लॉन्जाइनस एंड एडिसन टोल्ड अस, लॉन्जाइनस ने और एडिसन ने हमसे कहा था दैट द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, सर्वोत्कृष्टता, लॉन्जाइनस और एडिसन ने मित्रों हमसे कहा था, हमें ये चीज़ कही थी अपनी विवेचना में, अपनी आलोचना में, कि अगर द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठता की सबसे बड़ी कसौटी, सबसे महान कसौटी इज द टेस्ट ऑफ टाइम, समय का टेस्ट है, समय की कसौटी है. समय की कसौटी ही श्रेष्ठता की महानतम कसौटी है. अगर यूं भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इफ अ वर्क ऑफ आर्ट इज रेड, यदि एक कार्य को पढ़ा जाता है, पहली बात, यदि एक कार्य को, एक महान कार्य को, एक कृति को पढ़ा जाता है एंड एडमायर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स, कंट्रीज एंड एजेस, और यदि उस कार्य की, उस कृति की प्रशंसा होती है, किनके द्वारा? अलग अलग टेस्ट रखने वाले, अलग अलग रुचि रखने वाले, अलग अलग देशवासियों के द्वारा और अलग अलग युग के लोगों के द्वारा अगर इस प्रकार के कार्य की, कृति की प्रशंसा होती है, देन इट इज अ ग्रेट वर्क. तो वास्तव में वो एक महान कार्य है. In this context, let me clarify one thing. When we are discussing the touchstone method by Matthew Arnold, and I'm putting this sentence before you. I'm drawing you, my dear friends, I'm drawing you
I am drawing your attention to this sentence, the last sentence of this slide. If a work of art is read and admired by people of different tastes, countries, and ages, then it is a great work. So, dear friends, let me tell you this thing, that Shakespeare's works were very much admired by each and every author of all ages. Shakespeare's works are admired, were admired, and I suppose, I may be wrong when I use this word suppose, he will be remembered for all ages to come. What I mean to say is that Shakespeare's works had been admired by different countries, by different people of different tastes, and by different people of different ages. So, here it is confirmedly clear that a work of art remains an immortal work of art if it is admired by people of different tastes, countries, and ages. Then it is a great work of art. Next slide, friends. For him, for Matthew Arnold, the real taste of excellence is the taste of the people and the feeling of greatness in a work of art. What he says is, Matthew Arnold जो कहते हैं वो ये कि the real taste of excellence, श्रेष्ठता की वास्तविक कसौटी क्या है मित्रों, is the taste of the people, लोगों की रुचि, and the feeling of greatness in a work of art, एक कृति में महानता को खोजने की अनुभूति, वही रियल टेस्ट ऑफ एक्सेलेंस है. ही बिड्स अस शन, वो हमसे कहते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड हमसे कहते हैं कि हिस्टोरिक एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, वो हम छोड़ दें, उनका त्याग कर दें. What he says in this sentence, see, he bids us shun the fallacies, the errors of the historic and the personal estimates and attain to real estimate of a work of art. और हमसे ये गुजारिश करते हैं, हमसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हम किसी भी कृति के रियल एस्टिमेट की ओर आगे बढ़ें. बाय किस तरह से? बाय लर्निंग टू फील एंड एंजॉय द बेस्ट वर्क ऑफ द रियल क्लासिक. जो वास्तविक क्लासिक है, जो वास्तविक श्रेष्ठ है, उसके सर्वोत्कृष्ट, उसके श्रेष्ठ कार्य का आनंद हम उठाएं.